Assalamu alaikum dear students. Today our lecture number 4, online lecture number 4 was from the topic ideology of Pakistan in the light of the statements of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam. It is from book page number 9, 10 and 11. Clear? Look at the topic. Means के ideology नज़रिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बयानात के थ्रू या उनकी स्पीचेस के थ्रू हमें कैसे क्लियर होती है। पोइट ऑफ ईस्ट अल्लामा इकबाल एंड फादर ऑफ नेशन कायद-ए-आज़म। शायर मशरिक़ कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, पोइट ऑफ ईस्ट, फादर ऑफ नेशन, बाबाए कौम। दे प्लेड ग्रेट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान and they also clear the ideology of Pakistan through their statements and speeches. Allama Iqbal gave the concept of separate state and Quaid-e-Azam gave it practical shape. Allama Iqbal, some little bit information about him. Born in November 9, 1877 at Sialkot, died on April 21, 1938 Lahore. He was a poet, philosopher, thinker, theorist and barrister in British India. It's a simple information. बाकी आपको पता है कि पोइट ऑफ ईस्ट और हमारे कौमी शायर भी कहलाते थे और हैं. Initially he was also like Sir Syed Ahmad Khan, great supporter of Sir Syed Hindu Muslim unity and united Indian nationalism. But like Sir Syed Ahmad Khan, when he saw the later developments and events against the Muslims, he gave the idea of separate state. And in his presidential address of Muslim League at Allahabad in the annual session, he said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. The principles of European democracy cannot be implemented in India. The Muslims' demand for a Muslim India within India is through therefore perfectly justified. यानी इंडिया एक ऐसे लोगों की सरजमीन है या बर-ए-आज़म है, कॉन्टिनेंट है ह्यूमन ग्रुप्स का, जहाँ पे मुख्तलिफ़ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ़ मज़हबों को एडॉप्ट किया हुआ लोग रहते हैं. यहाँ पे यूरोपियन डेमोक्रेसी का नफाज बिल्कुल नामुमकिन है और जो मुसलमान वहाँ के सब ब्रिटिश इंडिया के मुसलमान एक अलग रियासत की डिमांड कर रहे हैं, वो पूरी परफेक्टली जस्टिफाइड है, जायज़ है. उसी सेशन के दौरान इन द सेम अलाहाबाद एड्रेस ही ऑल्सो प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन दीज वर्ड्स. I would like to see the Punjab North-West Frontier Province Sindh and Balochistan joined together, amalgamated into a single state. मैं चाहता हूँ कि NWFP पंजाब बलूचिस्तान सिंध amalgamated means इकट्ठे कर दिए जाएँ into a single state. It appears to be the final destiny of the Muslims of North-Western India. Look at this direction, North-Western. तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मुसलमानों के लिए एक उनकी मंजिल साबित होगा. तो दीज इज़ टू स्टेटमेंट क्लियर अस दैट ही वॉज ऑल्सो इन ग्रेट फेवर ऑफ सेपरेट स्टेट एंड इन द फेवर ऑफ मुस्लिम राइट्स. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान आइडियोलॉजी, ही एक्सप्लेन in a very comprehensive way on several occasions. He defined Muslims, यानी मुसलमानों की उन्होंने definition कैसे की? Muslims are a nation according to any definition. Clear? वो एक कौम है किसी भी तारीफ़ के लिहाज से. अगर हम किसी नेशन की तारीफ़ करते हैं, किसी कौम की तारीफ़ करते हैं, उस लिहाज से मुसलमान भी एक अलग कौम है. And they must have their own separate homeland. यहाँ पे मुसलमानों की तारीफ़ करने के बाद on 23rd March a historical session was held at Lahore Minto Park, annual session of Muslim League. He said, Hinduism and Islam are not merely two religions but two separate social orders, and it is a dream that the Hindus and Muslim can evolve a common nationality. यानी हिंदुज़म और इस्लाम न सिर्फ दो मज़हब हैं बल्कि दो मुख्तलिफ़ सोशल ऑर्डर है, माशरती निज़ाम है
और ये ख्याल करना, ये ख्वाब समझा जाए कि कभी भी अब आइंदा ये कम्युनिटी की सूरत में या नेशनलिटी, एक सेम नेशनलिटी की सूरत में रहेंगे। हिंदू एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस विच आर बेस्ड मेनली ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। और ये दोनों के मज़हब और सिविलाइजेशन, कल्चर सब कुछ डिफरेंट है। दोनों की ये सारी डिफरेंसेस एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। समझ आ गई है? और इसी का मतलब ये है कि ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इन वन ऑफ हिज गांधी लेटर, कायदे आज़म इन वन ऑफ हिज लेटर्स टू गांधी जी ही रोट, वी आर अ नेशन विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, मखसूस या ख़ास कल्चर के लोग हैं, एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, यानी हमारे असूल, सेंस ऑफ वैल्यू एंड प्रोपोर्शंस, लीगल लॉज एंड मोरल कोड्स, customs and calendars, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life, on life. यानी ये सारी चीज़ें, चाहे हमारा मज़हब है, चाहे हमारा कल्चर है, हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे रवैये हैं, हमारी इक़दार्स हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं, सब कुछ हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और हमारा एक ख़ास ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीक़ा है, सिस्टम है। बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज, यानी इंटरनेशनली भी तमाम कानूनों को देखते हुए, वी आर ऑल्सो टोटली डिफरेंट फ्राम अदर्स, वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। तो दीज स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म ऑल्सो क्लियर अस दैट ही क्लियर दैट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन दीज स्टेटमेंट्स। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म एक्सप्लेन्ड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान and Pakistan movement in these words: we should have a state in which we could live and breathe. हमारे पास एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहाँ हम जिंदा रह सकें और सांस ले सकें, as a free man, and which we could develop according to our own lives and cultures, and where principles of Islamic social justice could find fair play. यानी जहाँ पे हम अपनी सोच, अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और जहाँ पे हमारे जो असूल हैं, हमारे माशरती इंसाफ के तसव्वुर को बहुत जगह ऐसी मिले कि जहाँ पे माशरती इंसाफ हो, जस्टिस हो, जहाँ पे वो पूरा किरदार अदा कर सके, अदलो इंसाफ। क्लियर? Speeches and statements of these two great leaders help us in understanding ideology of Pakistan. Both leaders prove that Muslims and Hindus are two separate nations. Referring in their statements, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू भी रेफ़र किया है, बताया है कल्चर एंड रिलीजन्स आर डिफरेंट, सिविलाइजेशन, जैसा कि कायदे आज़म की सेइंग में भी शो होता है, अल्लामा इकबाल की सेइंग में, कुड नॉट लिव टुगेदर ड्यू टू क्लास क्लियर म्यूचुअल डिफरेंसेस, यानी ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। मुस्लिम्स हैव द राइट टू हैव देयर ओन सेपरेट होमलैंड, तो मुसलमानों को ये हक़ हासिल है कि उनका अपना एक अलग वतन होना चाहिए। सो दीज स्टेटमेंट्स क्लियर अस दैट दे वर ऑल्सो अ ग्रेट लीडर्स, एंड दे प्रूव थ्रू देयर स्टेटमेंट्स that Pakistan ideology and the creation of Pakistan is very much important. Clear? For more clearance, read the topic. Thank you.